Let us sing together. फिर एक बार मिलकर गाएंगे। I have heard my Savior calling. I have heard my Savior calling. I have heard my Savior calling. Take thy cross and follow me. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. I'll go with him all the way. Though he leads me through the valley, though he leads me through the valley, though he leads me through the valley, I'll go with him all the way. Though he leads me through the garden, though he leads me through the garden, though he leads me through the garden, I'll go with him all the way. Though he leads me through the conflict, though he leads me through the conflict, though he leads me through the conflict, I'll go with him all the way. Though he leads me through fiery trials, though he leads through fiery trials, though he leads through fiery trials, I'll go with him all the way. Once again, first set. फिर एक बार I वापस गाएंगे। have heard my Savior Savior calling. I have heard my Savior calling. very good. I have heard my Savior calling. May I cross thy cross and fall. First, brothers, you sing. Please speak. You keep quiet, sisters. Please start. भाई पहले गाएंगे। I have heard my Savior calling. Very good. I have heard my Savior calling. I have heard my Savior calling. Take my cross, Now, sisters, please. I have. Last line we have to sing it slowly. और जो आखिरी जो पैराग्राफ का जो लाइन है उसे थोड़ा सा धीमे गति से गाना है। I have heard my Savior calling. I have heard my Savior calling. I have heard my Savior calling. Take thy cross and follow me. Where he leads me, I Pardon. will follow. where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. Okay, now we will
परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। So before we look into the word of God, let us sing Bible chorus. और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले और बाइबल के इस कोरस को गाएंगे। Every promise in the book. और हर एक वायदे मेरे लिए है, और इंग्लिश में एवरी प्रॉमिस इन द बुक इज माइन। Please lift up your hands. और अपने हाथों को ऊंचा उठाइए। Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. All the blessings of His love divine. Every promise in the book is mine. हर एक वायदा मेरे लिए है. हर एक बाब, हर एक आयत, हर एक लाइन. उसकी प्यार की सारी बरकतें, हर एक वायदा मेरे लिए है. गंध वाग्दानंबुलन्नि नावी, प्रतिवचनము వర్షవచనము, తన దివ్య ప్రేమ వాగ్దానంబులు, గంధ వాగ్దానంబులన్ని నావి. Greetings to you all in the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. और फिर आपको प्रभु यीशु मसीह के इस महिमित नाम में आपको जय मसीह कहता हूँ। What a joy to have fellowship with you, young people like you. और मेरे लिए ये कितने ही आनंद और खुशी की बात है कि ऐसे जवानों के साथ मेरा संगति है। थोड़ा आवाज बढ़ाओ भाई, और ऊपर करो जरा। Yeah. I'm so happy by seeing you all, young people like you, and especially to say the word of God with young people like you. और मैं कितना ही खुश हूँ ऐसे जवानों को देखने के लिए, और विशेष करके इन आप जैसे जवानों के सामने परमेश्वर के वचन को रखने के लिए। I want you to be strong in the Lord. और मैं चाहता हूँ कि आप इस परमेश्वर में आप मजबूत बनते जाएं, May God help you to be strong in the Lord. और परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर में मजबूत बनते जाएं। Like Sister Sharon, many of you must come forward and share your testimony of Okay. your salvation. और जैसे बहन शैरन की तरह आप भी अपने गवाही को कलीसिया के सामने आप रखें। I appreciate Sister before her baptism, she could come forward and share her personal testimony, how God touched her, how her life was changed. और मैं बहन को सराहता हूँ कि कैसे बपतिस्मा लेने से पहले उसने अपनी गवाही को हमारे सामने रखा, और कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला है। Even many after baptism, they don't want to share testimony. और बहुत से ऐसे लोग हैं बपतिस्मा के बाद भी अपनी गवाही को वो दूसरों के साथ नहीं बांटते। But sister, before her baptism, she is able to share her testimony. लेकिन बहन जो है बपतिस्मा के पहले ऐसी गवाही को उसने हमारे साथ बांटा है। Oh, now for this youth meeting, I'm going to share one subject. और इस जवानों की सभा के लिए एक विषय को मैं आपको कहता हूँ। I'm stirred up by God to talk on prosperity. और परमेश्वर ने मुझे उत्तेजित किया है कि जो सफलता है या उस विषय में कहने के लिए। Young people, they want to prosper in their life. और जो विशेष करके जवान हैं उन्हें अपने जीवन में हर विषय में सफलता They चाहिए, want to prosper in their studies, और समृद्धि और अपने Studies. स्टडीज में उन्हें सफलता चाहिए, and they want to prosper in their job, और अपने कामों में भी उन्हें सफलता चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना है, and also they want to see prosperity in their family also. और अपने परिवार में भी ऐसी इस बढ़ाई को समृद्धि को वो चाहते हैं। So I am going to talk on prosperity. और इसीलिए इस समृद्धि या सफलता के विषय में आपसे कहना चाहता For हूँ। that, please your turns your Bibles to the book of Proverbs. और नीति वचन के अध्याय में अपने ध्यान केंद्रित करें, The book of Proverbs, chapter 28 और नीति वचन उसका 28 भाग and verse 13, please. और उसका 13वां वचन। Whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them
will obtain mercy. जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। Shall we pray? हम प्रार्थना Please करेंगे come on your knees. और हम घुटनों पे आएंगे। Don't sit right and left, but come on your knees straight. हाँ, और आपसे विनती है कि घुटनों पर आइए, ना अपने दाएं या बाएं और आप बैठें। Like old people, don't sit left and right. और बूढ़ों की नाई या बाजू में दाएं या बाएं में ना बैठें, Come on your knees straight. और सीधे घुटने पर आप आइए, सीधा बैठिए घुटने पर। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी पिता, what a joy to have fellowship और with कितना young people. और ये कितनी आनंद की बात है कि जवानों के साथ मेरी संगति है। Lord, kindly bless the reading, just as we have read now. और जिस भाग को हमने पढ़ा है आप ही आशीषित करें। And Lord, as I am going to share the word of God with young people, we seek the help of the Holy Ghost. और जैसे इस वचन को मैं जवानों के साथ बांटना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा की सहायता मैं चाहता हूँ। Lord, please visit everyone of who sit here. और आप जो भी यहाँ पर है सब आप उनके साथ आप रहें, Lord, none may go empty. और कोई भी यहाँ से खाली ना जाए, Everyone may be touched by the word of God. और सब वचन से छुए जाए। Thank you for those who are already saved. और जो उद्धार पाए उसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। If there is anyone who और- did not get saved, kindly visit them. और जो अभी भी उद्धार नहीं पाया है आप ही उन्हें भेंट करें। I pray with thanksgiving in the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. और ये धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं करता हूँ, आमीन। Amen. Sit. Please listen the word of God carefully. और परमेश्वर के वचन को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, Do not allow your thoughts to go here and there. और अपने विचारों को यहाँ वहाँ जाने मत दीजिए। In the verse just we have read, अभी जो वचन भाग हमने पढ़ा है, I want you to notice this particular verse, prosper. और यहाँ पे जो सफल का जो शब्द है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। Now what does its meaning? और इसका ये सफल कहने का अर्थ क्या है? I want to give you 2 or 3 more synonyms और to this prosperity. और ये सफल के विषय में और 2-3 जो उसके जो शब्द हैं उसको मैं तुमसे, और उसका जो अर्थ है मैं कहना चाहता हूँ। Prosperity means a state of being successful. और सफलता का मतलब है कि ऐसे जीवन के ऐसे में रहना जहाँ पे हर काम आपका निपुण है। Prosperity means getting development in some matter. और सफलता कहने से जिस विषय में आपकी जो पूर्ण निपुणता हो। Prosperity means one kind of breakthrough. और सफलता कहने से किसी एक विषय में जो नहीं छूट रहा था वो अब छूट गया है। So God wants to prosper His people. और परमेश्वर ये चाहता है कि हम सफलता पाएं। Now I am going to share with you very briefly 3 points in relation to prosperity. और मैं बड़े संक्षिप्त में 3 विषयों को सफलता के विषय में आपके सामने रखूंगा। See, prosperity comes through 2 ways. और सफलता कहने से 2 विषयों से वो आती है, Through 2 ways. और 2 मार्गों से वो सफलता मिलती है। One, prosperity comes from God. This is different. और जो सफलता परमेश्वर देता है वो अलग है, And prosperity also comes from Satan also. और सफलता शैतान से भी आती है। What kind of prosperity do you want? और आपको किस प्रकार की सफलता चाहिए? The prosperity comes from God or the prosperity comes from devil? क्या ये सफलता जो परमेश्वर से आती है, क्या वो सफलता चाहिए जो शैतान से आती है? In Matthew's Gospel chapter 4, और मत्ती के 4 अध्याय में there we find how Jesus was tempted by devil. और हम ये देखते हैं कि कैसे परमेश्वर यीशु मसीह की शोधना की गई। After his baptism, और बपतिस्मा के बाद he was tempted by devil for 40 days. और परमेश्वर प्रभु को 40 दिन वहां पे उसकी शोधना की गई। When Jesus Christ was tempted by devil, और जब शैतान के द्वारा उसकी ये शोधना की गई, devil comes and says to Lord Jesus Christ, और शैतान जब आकर उससे कहता है, see Matthew's Gospel chapter 4, और मत्ती उसका 4 अध्याय, Matthew's Gospel chapter 4 मत्ती उसका 4 and verse 8 please. और उसका 8वां वचन, 8 and 9th verse. 8वां और 9वां वचन पढ़ेंगे।
See, what a manner devil tempted like Lord Jesus Christ. यहाँ पे देखिए कैसे किस प्रकार जो शैतान जो है परमेश्वर की शोधना क्या उसकी परीक्षा ले रहा है। The devil took him to a high, very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. और फिर इब्लिस उस एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज उसका वैभव दिखाया। And in 9th verse, please. And he said to him, all this I will give you. और उससे कहा कि मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। Please notice here why I told you prosperity even comes from Satan also. और यहाँ पे इस बात पे जरा गौर दें कि कैसे जो शैतान जो भी है वो भी सफलता देता है। Devil tempted and said to Lord Jesus Christ, see, all these kingdoms and its glory has been given to me. If you bow down to me and worship me, I will give you all this prosperity to you. और शैतान ने जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने इसकी ऐसी परीक्षा ली कि कहा गया कि सारा जो ऊंचे पहाड़ पे लेके सारा जो राज्य है और ये जो इस पृथ्वी की जो महिमा है उसने उसका वैभव उसको दिखाकर और उससे कहा कि ये सारा चीज मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मुझे गिर के मेरा दंडवत करे। That is why in the world we see wealthy people, affluent people like Ambani, some others. और इसीलिए हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं जो बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति हैं जैसे अंबानी को हम देखते हैं। When we look at such people, we think what a wealthy people they are. और उनके विषय में जब हम देखते हैं हम कहते हैं कि देखो ये कितना धनी व्यक्ति है। Oh, what a great people they are. और कितने महान ये लोग हैं। But let me tell you, the prosperity they are enjoying did not come from God. लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जो सफलता जो धन उन्हें पाया है वो परमेश्वर से नहीं आया है। The prosperity that comes from God, it lasts forever. जो सफलता परमेश्वर से आती है वो सदा तक रहती है। But the prosperity they are enjoying at present, they are not going to last forever and ever. लेकिन जो सफलता आज के दिन वो जो भोग कर रहे हैं वो सदा तक नहीं रहेगी, सदा काल तक नहीं रहेगी। When they die, their prosperity will not follow them. और जब वो मृत्यु पाएंगे जो उनकी सफलता है वो उनके पीछे नहीं आएगी। But when the prosperity that comes from God, it lasts forever. लेकिन जो सफलता परमेश्वर से आती है वो सदा काल तक रहेगी। So my dear young brothers and young sisters, you have to understand prosperity comes from two ways. और इसलिए जवान भाई और बहन आपको ये समझना होगा कि सफलता कहने से ये दो जगह से आती है। That is why when you look at great people, highly educated people, wealthy people, don't be envy. When you look at great people, wealthy people, you don't be envy by looking them. और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐसे धनी व्यक्ति को देखते हैं या बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति को देते हैं तो उनसे आप ईर्ष्या मत करें। Because their prosperity did not come from God. और क्योंकि उनकी जो सफलता है वो परमेश्वर से नहीं आई है। But the prosperity that's come from God, it is a different prosperity. लेकिन जो परमेश्वर से जो सफलता आती है वो अलग प्रकार की सफलता होती है। Now I am going to share three things briefly about prosperity that comes from God. और मैं 3 विषयों अंश में आपसे संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर से कैसे ये सफलता आती है। See, firstly, पहले book of Genesis. और उत्पत्ति का जो पुस्तक है, The book of Genesis chapter 1 और उत्पत्ति उसका पहला अध्याय ही and verse 28, please. और उसका 28 वचन। The book of Genesis chapter 1 and verse 28. Hmm. Hmm. Here what we find is God created Adam and Eve in his own image and in his likeness. हम यहाँ देखते हैं कि आदम और हव्वा को अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उनको बनाया। After creating them in his own image and likeness, then God blessed them. When they received blessings from God, then they prospered. और उनको बनाने के बाद में अपने स्वरूप में बनाने के बाद में अपनी इच्छा के अनुसार बनाने के बाद में हम देखते हैं कि बाद में जब परमेश्वर ने उनको आशीषित किया तब वो आशीषित होने लगे। Here what I want to say is prosperity comes through the blessings of God.
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सफलता जो है वो आपको तब आती है जब परमेश्वर से आप आशीषित होते हो। Divine blessings brings prosperity in our life. और आत्म जो दैविक जो आशीष है उसके द्वारा आपके जीवन में आशीष आती है। If so, then when the divine blessings comes upon us, और जब ये जो आत्मिक जो आशीष है वो कब आती है हमारे ऊपर? divine blessings come upon us then when we are in the image of God, in the likeness of God. और ये जो आत्मिक दैविक जो आशीष है ये कब आती है? जब हम जो है परमेश्वर के स्वरूप में उसकी स्व इच्छा के अनुसार हम जब होते When हैं। you are in the image of devil, in the likeness of devil, God is not going to give you blessings. यदि आप उस शैतान के स्वरूप में हैं तो याद रखिएगा परमेश्वर आपको वो आशीष नहीं देता। So God created Adam and Eve in his own image and his own likeness, and then he blessed them. और इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्व इच्छा में बनाया, तब उसके बाद उसने उसको आशीषित किया। Prosperity comes by the blessings of God. और जो सफलता है वो परमेश्वर के आशीष के बाद आती है। In 2 Corinthians chapter 5 and verse 17, और दूसरा कोरिन्थी उसका 5 और उसका 17 में, 2 Corinthians chapter 5, दूसरा कोरिन्थी And उसका verse 5 17. और उसका 17 वचन। yeah. See, here we find a new creation. और हम यहाँ देखते हैं एक नया जो वस्तु जो बनाया गया है। Now sister shared her testimony. और अभी बहन ने गवाही दी What is her testimony? और उसकी गवाही क्या थी? As she became new creation, क्या as soon as she came into Christ, क्या वो नई सृष्टि में बनी जब जैसे वो मसीह में आ गई all things have passed away, और सारी पुरानी जो सृष्टि वो चली गई and behold, everything have become new. और देखिए हर चीज वो नई सृष्टि बन गई है। The moment we come into Christ, what happens? A new creation takes place. और जब प्रभु यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो क्या होता है? हम में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। That means we come into the image of God, into the likeness of God. और उसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में आ जाते हैं, उसकी स्व इच्छा में हम आ जाते हैं। All old things have taken away. और सारी पुरानी चीजें हमसे ले जा चुकी है All old things passed away. और सारी पुरानी चीजें जा चुकी है। And also in Ephesians chapter 2, और इफिसी की उसके दूसरे अध्याय में, Ephesians chapter 2 इफिसी की पत्री के उसके दूसरे अध्याय में and verse 10, please. और उसका 10वां वचन। Ephesians chapter 2 and verse 10. Here we see what Paul the apostle is saying. For we are a workmanship created in Christ Jesus for good works. और यहाँ पे ये लिखा गया है कि मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए हुए। So created in Christ. और मसीह यीशु में सूझे गए किए गए। So prosperity comes through the blessings of God. और इसीलिए सफलता प्रभु परमेश्वर की आशीष से आती है। God's blessings comes then only when you are in Christ, in the new creation, when you are created in Christ to do good works. और सफलता तब मिलती है जब आप प्रभु यीशु मसीह के उसके स्वरूप में बनते हैं। और स्वरूप में बनने के किस लिए स्वरूप में बनते हैं? ताकि अच्छे कार्यों को करें। Adam and Eve, they were created in the likeness, in the image of God. When they committed sin against God, they lost the divine image and divine figure. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो हम देखते हैं कि वो जो आत्मिक जो उनकी जो आशीष थी उसे वो खो बैठे। This is the first point. और ये पहला विषय है, अंश है। Prosperity comes through blessing. और जो सफलता है वो आशीष से आती है। So this is the prosperity comes from God. और ये जो सफलता है वो परमेश्वर से आती है। This begins with repentance. और इसकी शुरुआत पश्चाताप से होती है। This begins through repentance and through the forgiveness of sins. और ये इसकी शुरुआत हमारे पश्चाताप से होती है, हमारे पापों को के क्षमापन से होती है। And secondly, और दूसरा जो अंश है, prosperity comes through obedience. और सफलता जो है वो आज्ञा मानने से आती है। This we find in the life of Abraham. और इसको हम अब्राहम के जीवन में देख सकते हैं। We can see the life of Abraham. He was a really prosperous man.
और हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि बड़ा सफलपूर्ण वो व्यक्ति था। The whatever prosperity Abraham had, it has come from God. और जो कोई सफलता अब्राहम ने पाई है वो परमेश्वर से ही आई है। See the book of Genesis, देखिए उत्पत्ति की पुस्तक में chapter 22 और 22 अध्याय and verse 17 and 18. और Please. उसका 17 या 18 वचन। One, please. Loudly, please. और कोई Here God said to Abraham, I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven, and as the sand that is on the seashore, and your offspring will possess the gate of his enemies. और यहाँ पे लिखा गया, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। Now we find in 18 verse the reason. और उसके 18वें वचन में उसका कारण क्या हम देख सकते हैं। And in your offspring shall all the nations of the earth be blessed because you have obeyed my voice. और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। Dear young brother and young sister, Abraham received tremendous prosperity in his life. और जवान भाई और बहन, अब्राहम ने अपने जीवन में बहुत सी आशीष पाई And है the prosperity he received from God, it lasted even now. और उसकी जो आशीष उसने जो सफलता परमेश्वर की ओर से पाई है, आज तक हम उसे देखते हैं। So this is the prosperity given by God. और ऐसा जो सफलता है ये परमेश्वर की ओर से आती है। This prosperity did not come from the world. और ये जो सफलता है ये संसार से नहीं आई है। If you want to see lasting prosperity in your personal life, then obey God, obey His word. और यदि व्यक्तिगत जीवन में ये सफलता आप चाहते हो तो उस परमेश्वर की मानो, उस परमेश्वर की बातें सुनो। God cannot bless disobedient people. और परमेश्वर आज्ञा न मानने वालों को God आशीष नहीं cannot करता। bless rebellious young people. और जो बलवा करने वाले जवान भाई बहन होते उनको आशीष नहीं करता। Young brother, young sister, if you want to see really God is prospering you, then obey to Him. और यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो उसकी बात उसकी आज्ञा को माने। Which is difficult? Obeying to God is difficult, or continuing in sin is difficult? Which is difficult? और ये सबसे जो कठिन क्या है, क्या परमेश्वर के वचन को मानना या पाप में रहना? Many times we think obey to God is difficult. और कई विषयों में हम ये ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर की बातों को मानना ये कठिन है। Obeying God is not difficult. लेकिन परमेश्वर की बातें मानना ये कठिन नहीं है। Obeying Satan and his words is difficult. और शैतान की बातें और उसको मानना ये कठिन है। So prosperity comes about through obedience. और इसीलिए आशीष जो है बात मानने से, आज्ञा का पालन करने से Are आती you है। obedient to God? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो? If you are obedient, then thanks be to God. और यदि आप हो तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। If not obedient, right now, take a firm decision to obey God and His word. If you want to see prosperity coming from God. और यदि आप उसका आज्ञा का पालन नहीं करते तो आज ही निर्णय लो कि आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन करोगे। So prosperity, firstly, prosperity comes through blessings. Second, through obedience. और इसीलिए पहला जो अंश है, जो सफलता जो है वो परमेश्वर की आशीष से आती है। And thirdly, दूसरा जो है, and thirdly, it is important point. और दूसरा जो उसकी आज्ञा मानने से आती है, और तीसरा जो अंश है वो बहुत ही प्रमुख है। Prosperity comes through by being in the perfect will of God. और सफलता जब हम परमेश्वर की स्वेच्छा में एकदम निपुण हैं या तब वो आती है। Why many young people they are unable to see prosperity coming from God? और कई ऐसे जवान हैं, क्यों परमेश्वर की इस आशीष को वो नहीं देख पाते? They are in the Christian family. They are born in Christian family, but they are unable to see blessings coming from God. और वो तो क्रिस्ती परिवार में भी पैदा हुए हैं, वहीं पे वो भले पड़े हैं, तो भी परमेश्वर की इस आशीष को वो नहीं देखते।
The reason is they are not in the perfect will of God. और उसका कारण यही है कि परमेश्वर की स्वइच्छा में वो परिपूर्ण नहीं है। So prosperity comes through by being in the perfect will of God. और इसीलिए आशीष जो है, सफलता जो है परमेश्वर की स्वइच्छा में परिपूर्ण होने से आती है। This we find in the life of Isaac. और इस विषय को इसहाक के जीवन में देख सकते हैं। Abraham was prosperous man, और अब्राहम जो है वो सफल व्यक्ति था, and after that his son Isaac also prosperous और man. उसके बाद उसका पुत्र इसहाक भी एक सफल पूर्ण व्यक्ति है। Because God appeared to Isaac and told him, Isaac, if I want to be with you and bless you, be in my perfect will. और क्योंकि परमेश्वर ने इसहाक को भेंट किया और कहा यदि तू सफलता चाहता है और तो तू मेरे सामने मेरे स्वइच्छा में परिपूर्ण हो जा। Young brother, young sister, please learn how to be in the perfect will of God. और भाई और बहनों, जवान भाई और बहनों, आप ये सीखें कि कैसे परमेश्वर की स्वइच्छा में आप परिपूर्ण हो। Then God will bless you tremendously. और तब परमेश्वर बहुत ही आशीषित आपको सफलता आपको He देगा will give you bright future और एक अच्छा जो जीवन जो है आपको वो देगा। if you learn obey God's will. और यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखो। Book of Genesis chapter 26 और उत्पत्ति उसका 26 अध्याय and verse 12 please. और उसका 12वां वचन। See what we read here. Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. और क्या यहाँ देख रहे हैं कि इसहाक ने उस देश में जोता बोया और वर्ष में से 100 गुण फल पाया है। And the Lord blessed him, and the man became rich and gained more and more until he became very wealthy. और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बूढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। Isaac kept on prospering. और इसहाक जो है सफलता में बढ़ते चला गया। His prosperity was not stopped. और उसकी सफलता को किसी ने वहां पे उसे रोका नहीं। So I shared 3 points. और मैंने 3 अंशों को सामने रखा है। Prosperity comes by through blessings, और आशीष जो है, जो सफलता जो आशीष से आती है, and prosperity comes through obedience, और सफलता जो है आज्ञा मानने से आती है, and prosperity comes by being in the perfect will of God. और असफलता परमेश्वर की स्वइच्छा में परिपूर्ण होने से आती है। Let me ask you a question. और यदि आपसे मुझे एक प्रश्न पूछना Are है, you ready to give answer? और क्या आप इसका उत्तर देने के लिए तैयार हो? Are you really in the perfect will of God? क्या आप सच में परमेश्वर की स्वइच्छा में आप परिपूर्ण हो? Can you answer to this question? Yes, brother, I am in the perfect will of God. क्या इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसा दे सकते हो कि हाँ भाई मैं परमेश्वर की स्वइच्छा में परिपूर्ण हूँ? Many times we think being in the will of God means walking on a soft way, no trouble. और कई विषयों में हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर की स्वइच्छा में परिपूर्ण होना होगा तो हमें बहुत ही सरल मार्ग में, जहाँ पे जो सरल मार्ग हमारे लिए होगा। Brothers and sisters, sometimes if you want to be in the perfect will of God, you have to go through difficult ways. और यदि आपको परमेश्वर की स्वइच्छा में परिपूर्ण हो, कई बार आपको कठिन मार्गों में आपको जाना होगा। That is why I sang that song. और इसीलिए मैंने उस गीत को मैंने गाया है। You must be ready to be led by God. और आप इस बात के लिए तो आपको तैयार होना होगा कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। You must be ready to be led by God. Wherever He takes, you must follow Him. और आपको इस बात के लिए तैयार होना कि जहां परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, जहां आपको ले जाए, आप उसके लिए तैयार हो। Many times, if it is difficult, you think it is not God's will. और कई विषयों में हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे लिए कठिन है और कदाचित ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Many times we find God's will in the difficult, in negative situations. और कई बार हम परमेश्वर की इच्छा को हमें जो बहुत ही कठिन समस्या लगती है उसमें हम पाते हैं। So may God bless this message. और परमेश्वर इस वचन भाग को आशीषित करे। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Please come on, your knees. और हम घुटनों पे सबाएंगे। Sister, brothers, और please भाई come और on. बहन अपने घुटने पर आइए। Very short message और बहुत ही संक्षिप्त में परमेश्वर का वचन था because I have to leave. और मुझे जाना भी है।
So I'm going to ask you, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, if you want to be prosperity, if you want to receive prosperity from God, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर से ये सफलता चाहते हो तो, you need to be in the perfect will of God. और आपको परमेश्वर की स्वेच्छा में परिपूर्ण होना Divine होगा। blessings brings prosperity. और जो आशीष भी सफलता को लाती है, Obedience brings prosperity. और आज्ञा का पालन करना सफलता को By लाती है, being in the perfect will of God brings prosperity. और परमेश्वर की स्वेच्छा में परिपूर्ण होना सफलता को लेकर Where are आती you है। now? आप कहाँ पर हो? Are you under the blessings of God? क्या आप परमेश्वर की उस आशीष के अंदर हो? If God wants to bless you, यदि you need to be in the new creation. और यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको सफलता दे, तो आपको नई सृष्टि में आना होगा। So shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान सर्वोच्च सर्वाधिकारी महान परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपने अद्भुत वचन से अंकल के द्वारा प्रभु, हम जो जवान जो सफलता के पीछे भागते हैं प्रभु और आशीष के पीछे भागते हैं प्रभु, लेकिन आपने आपके दास के द्वारा प्रभु, आपने हमारे मनों में, हमारे जीवन में प्रभु, कि अब्राहम ने जैसे सफलता पाई, इसहाक ने जैसे सफलता पाई, और आपकी सफलता जो है वो आपके आशीष का कारण है प्रभु, और सफलता जो है आज्ञा मानने से आती है प्रभु। जो सफलता जो है उस आपके स्वेच्छा में परिपूर्ण होने से आती है प्रभु। इस वचन भाग को, ऐसे अंशों को प्रभु आपने हमें हमारे सामने रखा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर एक बार प्रभु हमारे जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु, इस सफलता को प्रभु आप ही से हम पाए, आप हमारी ऐसी सहायता मदद करें प्रभु, और सही विषयों में प्रभु हम चुन पाएँ, कि यदि हमें ऐसा लगे कि ये मार्ग हमारे लिए कठिन है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से है, तो हम पीछे ना हटे और उस मार्ग में हम चले जाएं, ताकि उस सफलता को हम आज आखिरी में पाएं प्रभु। फिर एक बार प्रभु हम सभी जवानों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारे जीवन को प्रभु आप तैयार करें, और योग्यमय जीवन, महिमा आपके लिए एक महिमा का जीवन, ऐसा भाग हमें दी, जैसी प्रार्थना विनती करते हैं। फिर एक बार प्रभु हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए, इस वचन भाग को आपके हाथों में सौंपते हुए, आप ही इसे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हमारे जीवन में फलवंत करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। छोटी सी विनती हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। आशीष ले लेंगे, ऐसे प्रार्थना में रहिए। తండ్రి అయిన దేవుని పరమ ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము కూడి వచ్చిన యవన బిడ్డలందరికీ, ఆయన చిత్తములో ఉండాలి అని తీర్మానం చేసుకున్న వారికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం తోడుగా ఉండి నడిపించునుగాక। आमीन। यीशु नाम मिला, यीशु का नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु का नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया।